Let's start with questions from Olympiad for percent and percentage for class 7. If you want to stay updated with whatever I'm posting, then please like, share, and subscribe to my channel Siddhi Academics. So let's start. Next question says Simran has a certain sum deposited in a bank at 5% per annum. Rajat also has the same sum deposited in the same bank at 9% per annum. The difference between the annual interest received by both of them is rupees 220. Find the sum. तो ये क्वेश्चन टाइप है सिंपल इंटरेस्ट का. तो ये तो हमको पता चल गया. दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच इज यूजिंग परसेंटेज एंड इट इज फ्रॉम एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट. इट इज आल्सो अ सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन. सो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत इजी. लेट द प्रिंसिपल सम. देखो दोनों का सिमरन और रजत दोनों ने डिपॉजिट किया था सेम अमाउंट. सो लेट द प्रिंसिपल सम principal amount, principal sum, whatever you want to say, write. मैं amount लिख देती हूँ. AMT amount deposited by Rajat and Simran B. Let's say P because principal है तो P लेते हैं हमेशा X क्यों, right? Rajat and Simran B rupees P. Now simple interest we will calculate using P for Simran. सिंपल इंटरेस्ट ना लिख के मैं सिर्फ SI लिख देती हूँ. सिंपल इंटरेस्ट फॉर सिमरन एनुअली इन 1 ईयर. ओके, एक ईयर में ही उनका डिफरेंस दिया गया है. द डिफरेंस बिटवीन द एनुअल इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर. That difference is rupees 220. So I will also find simple interest for Simran for a single year, for 1 year. For 1 year will be principal into time, which is 1 in this case, and then r is the rate of interest by 100 क्योंकि हमें परसेंटेज मल्टीप्लाई करना है. सो p तो हमें p ही रखना है और t क्या है यहाँ पर एनुअली है. सो 1 p को लिख देती हूँ यहाँ पर p इंटू 1 इंटू r दिया गया है. r फॉर सिमरन इज 5% और परसेंटेज में डिक्लेयर करूँ तो 5/100. सो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 5p/100. Okay, this is the simple interest for whom? For Simran. Similarly, I'll find simple interest for Rajat. For Rajat, that also annually. For 1 year, that I annually लिखो, 1 year लिखो, one and the same thing, meaning नहीं बदलता. So वो भी PTR/100 formula थोड़ी change हो जाएगा simple interest का. So that will be P into 1 into rate of interest कितना है रजत के लिए 9/100. So it is going to be 9p/100. That is rupees 9p/100. Now the difference of simple interest between Rajat and Simran also given, that is rupees 20. So we'll subtract simple interest of Rajat minus simple interest of Simran, that is equal to rupees 220. मैं 220 डायरेक्ट लिखती हूँ, रुपीज क्यों लिखूंगी. सो क्या है सिंपल इंटरेस्ट फॉर रजत, दैट इज 9p/100 माइनस 5p/100 इक्वल टू 220. अब ये सेम है नीचे का लाइक फ्रैक्शन. सो इट बी हाउ मच 9p minus 5p/100 into 220, राइट 220. सो ये 100 दूसरे से सॉरी इक्वल टू है, बीच में इक्वल टू है. Now this I'll rewrite this part. It's looking a little bit messy. So this is actually how much? 9p minus 5p by 100 equal to 220. So 9p minus 5p कितना होगा 4p, and this 100 is divided this side. If it goes here, it will get multiplied. So it will be 2. So if it gets multiplied this side, this 100, if it goes that side, so it will be 2,000. So P, therefore P is equal to 2,000 divided by 4. So that is 4 5s are 20. 22 minus 20 is 2. Again 20 is 4 5s are 20 and 0 0. So मैं directly इधर लिखती हूँ. So principal amount for both of them, they have
deposited the same amount. So principal amount is rupees 5500. अगर नहीं दिखता हो, so I'll just erase this portion. When we are dividing 4 with 22,000, what we get is 5,500. So principal amount is rupees 5,500. All right. अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हियर सेज दैट देयर आर 6,500 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज in which 30% join humanities course, 45% non-medical, 15% commerce and rest medical. Okay, तो rest हमें नहीं बताया गया है जिन लोगों ने whoever have joined medical, तो वो percentage निकाल सकते हैं बड़े easily. Find the total number of students who join non-medical and medical. So first let's see the question type. Question type is parts always add up to whole. So let's see percentage of students who join medical. वो कैसे निकालेंगे? टोटल अगर 100% है उसमें से मैं सम अगर बाकियों का निकाल ओके ऐसे नहीं लिख के परसेंटेज ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स लिख देती हूँ, छोटा स्टेटमेंट हो जाएगा. मेडिकल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 100% minus 30% plus 45% plus 15%. ओके, ये सब प्लस करने से मुझे परसेंटेज ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स मिल जाएगा. तो 100% माइनस ये कितना होगा? 0 हो जाएगा. 5 + 5 10. 1 gets carried over, so it's 4 8 9 90%. So percentage of medical students is 10%. 10% of the total students have joined medical. तो मुझे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु जॉइन नॉन मेडिकल एंड मेडिकल, वो निकाल देती हूँ. सो मेडिकल स्टूडेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स कितने होंगे? 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. 10% टोटल नंबर कितना दिया गया है? 10% ऑफ टोटल इज 6,500. तो टोटल 6,500 स्टूडेंट्स है कॉलेज में से, उसमें उनमें से 10% जो है मेडिकल स्टूडेंट्स है. अब ये 10% को परसेंटेज के फॉर्म में लिख देते हैं, 10/100 के फॉर्म में लिख देते हैं, इंटू 6,500. सो 0 0 कैंसिल हो गए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, बच गया 65 इंटू 10. सो टोटल स्टूडेंट्स हु जॉइन मेडिकल इज इक्वल टू 650. सिमिलरली नंबर ऑफ नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स निकाल देते हैं, उसका भी परसेंटेज दिया गया है, यहाँ पर कुछ निकालना है नहीं. ये क्वेश्चन फेयरली सिंपल क्वेश्चन है. ओके, खाली हमें पता होना चाहिए हाउ टू गेट पार्ट्स आउट ऑफ अ होल. वो वाली चीज पता हो तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा मेडिकल का, एंड बाकी हम कर लेंगे. सो 45% जॉइन नॉन मेडिकल, यहाँ पर लिखा गया है 45% जॉइन नॉन मेडिकल. सो ये 45% ऑफ 6,500. अगेन 45 इंटू 65 ही बचेगा. मैं 0 0 लिख के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कैंसिल आउट करने की कोई जरूरत नहीं, वो तो होगा ही. सो नाउ आई मल्टीप्लाई 65 इंटू 45. 5 5s are 25, 2 gets carried over, so it becomes 325. और यहाँ पर 4 5s are 20, 4 6 are 24, it becomes 26. so add करने से 25 9 2925. so total students who join नॉन मेडिकल आई मीन स्ट्रीम वो है 2925. नाउ अगर हमें पूछे सम ऑफ मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, तो सम निकाल के भी दिखा सकते हैं. ऑलराइट, ये क्वेश्चन फेयरली सिंपल था. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. Arav bought an air conditioner for rupees 8,400. He spends rupees 4,200 on its repairing. इट मीन्स कि उसके पॉकेट से पहले 8,400 रुपीज गए खरीदने में, उसके बाद भी वो ठीक नहीं था, ऐसी कुछ खराब था. सो ही स्पेंड्स 4,200 ऑन इट्स रिपेयरिंग. आफ्टर सम मंथ्स उसे ठीक नहीं लगा. ही सेल्स इट फॉर रुपीज 7,800. सो फाइंड हिज लॉस अ प्रॉफिट पर्सन. सो क्वेश्चन टाइप जो है बाइंग और सेलिंग का है. सो टोटल कॉस्ट प्राइस कलेक्ट कर पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं. क्यों टोटल कॉस्ट प्राइस बोल रही हूँ? कॉस्ट प्राइस तो ऑलरेडी दे दिया गया है रुपीज 8,400. नहीं, वी हैव टू सी हियर दैट 4,200
दैट ही स्पेंडिंग ऑन इट्स रिपेयरिंग, वो भी उसके खुद के पॉकेट से जा रहा है। सो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि पहले जो स्पेंड किया दैट इज द इनिशियल अमाउंट, फिर रिपेयरिंग में जो स्पेंड किया वो भी तो उसी के पॉकेट से जा रहा है। सो दैट विल इंक्रीज द टोटल कॉस्ट प्राइस, जो कि इनिशियली उसने सोचा नहीं होगा कि ये खर्चा होने वाला है, पर हो गया रिपेयरिंग में। सो इट बिकम्स 12,600, बढ़ गया, कॉस्ट प्राइस टोटल बढ़ गया। सेलिंग प्राइस हमें दिया गया है, सेलिंग प्राइस हमें क्या दिया गया है, ₹7,800। ना क्लियर है, यहाँ पर कॉस्ट जो है उसके पॉकेट से जो गया वो काफी ज्यादा है और सेलिंग प्राइस उस हिसाब से काफी कम है, तो वो लॉस में रहा या ये प्रॉफिट में रहा? ऑब्वियसली ही इज फेसिंग अ लॉस। तो लॉस कितना होगा? यहाँ पर मैं कॉस्ट प्राइस को सीपी लिखती हूँ और सेलिंग प्राइस को एसपी। सो सीपी माइनस एसपी करूंगी तो लॉस पता चल जाएगा। सो लेट्स डू दिस। अगर मैं इस तरह से करूं तो क्या आएगा उसका, 16 माइनस 88 हो जाएगा। यहाँ पर 11 बचा, 11 माइनस 4 इज ₹4,800। सो ये हो गया लॉस। पर मुझे क्वेश्चन लॉस थोड़ी पूछ रहा है, वो पूछ रहा है लॉस या प्रॉफिट। जो कुछ भी हुआ है उसे परसेंटेज में डिक्लेयर करो ना। परसेंटेज क्या होगा, लॉस बाय द कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस हमें ऑलरेडी दे दिया गया है 12,600। जो कुछ भी लॉस हुआ है किस पे लॉस हुआ है, कि उसके कॉस्ट प्राइस पे ही लॉस हुआ है, राइट। अब क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है वो तो उसके पॉकेट में बाद में आ रहा है, लॉस होता है प्रॉफिट होता है, इट्स ऑलवेज बेस्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस। फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने पहले समझाया था, एंड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट लॉस। सो यहाँ पर लॉस जो है 4,800 है और टोटल कॉस्ट प्राइस है 12,600 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे एंड देन यहाँ से क्या क्या कैंसिल होता है देखते हैं। 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12। अच्छा 4 से यहाँ से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा। 6 8 सा 48, 6 3 सा 12 एंड 6 1 सा 6। ओके, तो ये कुछ 800/31 इस टाइप का परसेंटेज पे आ रहा है। So now I'll convert this into a mixed fraction. So ये हो जाएगा 2 से 2 से नहीं, या 2 से होगा। So it will be 62. 8 minus 10 minus 2 is 8 और 7 minus 6 यहाँ पर 1 आता है, 0 आता है। So again यहाँ पर मैं अगर करूँ it will go by 5, right? So ये क्या हो जाएगा, 5 1 सा 5 और 5 3 सा 15। सो बचा क्या, 10 minus 5 is 5, 7 minus 5 is 2। ओके, सो क्या हो गया, अराउंड 25% उसे लॉस फेस करना पड़ रहा है। 25%, 25/31%, ये जो है दैट इज इज लॉस परसेंट दैट ही इज गोइंग टू फेस फॉर बिकॉज ऑफ द रिपेयरिंग कॉस्ट। ओके, कॉस्ट ज्यादा बढ़ गया। So this is a question from buying and selling. Let's move to another question. Now let's start with this question. Question says rupees 8,000 has been divided into two parts such that if one part is lent at 7.5% per annum for 2 years and the other part at 8% per annum for 3 years, then the total interest received is rupees 1,416. Find the two parts. अब वो नहीं कह रहा टू इक्वल पार्ट्स। रुपीज 8,000 हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड दे आर नॉट टू इक्वल पार्ट्स। सो लेट द फर्स्ट पार्ट, okay, let the first part which has been like lent at 7%, 7.5% per annum, let that first part be equal to rupees x. So second part will be rupees 8,000 minus x, right? So this will be rupees 8,000 minus x. Now, what is the interest we will calculate on the first part and the second part, and we will add both of them. Okay, and that value we can equate with what? With rupees 1,416, क्योंकि total interest received हमें दे दिया गया है. So let's calculate the interest received on first part. तो SI लिखती हूँ, simple interest for first part.
वो फॉर्मूला तो हमने पहले भी देख लिया था, उसमें PTR by 100 where P is principal, PTR by 100 होता है, जहां पर P है हमारा प्रिंसिपल जो कि X है इस केस में, T टाइम हमें दिया गया है 2 इयर्स के लिए, उसने वो जो पार्ट था उसने दिया था किसी को, वन पार्ट इज लेंथ, लेंथ मतलब देना, सो ही हैज गिवन फॉर 2 इयर्स, सो T value will be 2 and rate of interest is 7.5 by 100. So 7.5 into 2 इसको कर लेते हैं सॉल्व, 15x by 100 इस फॉर्म में, अच्छा रुपीज भी लगा देती हूँ, इस फॉर्म में हम लिख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। अभी सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड पार्ट ऑल्सो वी नीड टू कैलकुलेट, लेट्स कैलकुलेट दैट एज वेल। सेकेंड पार्ट विल बी सेम फॉर्मूला, PTR by 100, तो प्रिंसिपल कितना हुआ 8000 माइनस एक्स, टाइम कितना हुआ 3 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ 8 डिवाइडेड बाय 100, सो ये क्या हो जाएगा 24 into 8000 minus x by 100. So this also is rupees, in rupees. So ये इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट हम सेकेंड पार्ट है और ये सिंपल इंटरेस्ट और फर्स्ट पार्ट है। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, ओके, सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट, that will be equal to how much? That will be equal to rupees 1416. ऑल राइट, तो ये लिख लेते हैं। अब फर्स्ट पार्ट है 15x by 100, सेकेंड पार्ट जो है दैट इज 24 into 8000, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पर ही सॉल्व कर लेते हैं। सो दैट विल बी 000 लिख लेती हूँ यहाँ पर, एंड 8 4s are 32, 2 3 gets carried over, 8 2s are 16, 16 plus 3 that is 19, 192,000 minus 24x divided by 100, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 192,000 माइनस 24x बाई 100, ये सेकेंड पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट है, इक्वल टू 1416, सारे वैल्यूज आ गए। नाउ वी कैन सी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इज कॉमन, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, डिनोमिनेटर कॉमन है। नाउ ये क्या हुआ 15x माइनस 24x, तो ये कितना होगा, सिर्फ डिफरेंट साइन है, सो सब्ट्रैक्शन होके बड़ा जो है 24 का नेगेटिव जो साइन है वो आ जाएगा आंसर में, सो दैट विल बी माइनस 9x प्लस 192,000 इक्वल टू 1416। अब इस 100 यहाँ पर डिवाइडेड है, इस साइड जाएगा तो इट विल गेट मल्टीप्लाइड हियर, सो इट विल गेट मल्टीप्लाइड हियर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस विल बिकम माइनस 9x प्लस 192,000 इक्वल टू 141600। अब ये इसको मैं दूसरे साइड ले लेती हूँ, सो व्हाट इट विल बी माइनस 9x इक्वल टू 141600 माइनस 192,000, इसको सब्ट्रैक्ट करके देखें कितना वैल्यू आता है, तो यहाँ पर मैं इस बॉक्स के अंदर सब्ट्रैक्शन कर लेती हूँ, 192,000 यहाँ पर 006,141 सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो ये हो जाएगा 0 0, 10 माइनस 6 इज 4 एंड ये 0 आ जाएगा अगेन, 9 माइनस 4 इज 5, सो इट इज 50,400 है ना, तो 50,400 किसके साथ इक्वेट होगा माइनस 9x के साथ, सो इसको अब यहां लिख लेती हूँ, माइनस 9x इज इक्वल टू 50,400, सो सॉरी माइनस साइन रहेगा, इस साइड पे भी माइनस साइन रहेगा, सिर्फ यहां नहीं इस साइड पे भी माइनस साइन रहेगा, बिकॉज माइनस ये जो है 1,92,000 ये बड़ा है, सो आंसर में भी ये सब्ट्रैक्शन के बाद यहाँ पर माइनस साइन आएगा, दोनों माइनस साइन लेफ्ट एंड राइट साइड से मैं कट कर देती हूँ, सो x विल बी इक्वल टू 50,400 डिवाइडेड बाय 9, सो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 9 4 36, 9 5 45, सो 45 से हो रहा है
50 minus 45 is 5. So ये हो जाएगा 54. So 9 6 are 54 000. सो x का वैल्यू मेरा क्या फर्स्ट पार्ट का वैल्यू आ गया निकल के रुपीज, यहां पर लिख देती हूँ 5600. दिस इज द फर्स्ट पार्ट प्रिंसिपल. सेकेंड पार्ट का क्या होगा 8000 रुपीज. 8000 माइनस 5600. सो दैट विल बी 00 तो पहले आ जाएगा. 10 माइनस 6 है 4 एंड देन 7 माइनस 5 इज 2. सो रुपीज 2400. ऑलराइट, तो ये यहां पर भी लिख लेती हूं जस्ट फॉर yes, this is the x value and this is the second part of the principal. तो एक, so the question here says, next question, a man sells 2 horses for rupees 4000 each, neither losing nor gaining in the deal. If he sold one horse at a gain of 25%, then the other horse is sold at a loss of what percentage? वो पूछ रहा है क्वेश्चन ना. देखो 2 हॉर्सेस थे, दोनों को उसने ईच 4000 रुपीज में सेल किया है. तो कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, उसने किस प्राइस में वो 2 हॉर्सेस ही हैज बॉट हमें नहीं पता. बट ये क्लियर है क्योंकि देयर इज ही इज गेनिंग नथिंग एंड ही इज लूजिंग नथिंग आफ्टर buying those 2 horses and selling them away. That means cost price of both the horses, cost price of 2 horses is equal to selling price of both the horses. सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है बट नॉट नेसेसरली कॉस्ट प्राइस सेम हो, क्योंकि क्वेश्चन में हमें मेंशन नहीं किया गया है और हुआ ही नहीं होगा बिकॉज इन वन हॉर्स ही इज गेनिंग सम अमाउंट, इन अनदर हॉर्स ही इज लूजिंग. सो हम पहले निकालते हैं जो हॉर्स का जिसमें उसे गेन किया है फर्स्ट हॉर्स, उसका हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस कितना है. तो कैसे निकालेंगे? वी आर गिवन फॉर फर्स्ट हॉर्स, मैं एक हॉर्स को फर्स्ट लेती हूं जिसमें हमें गेन जिसमें उसे गेन मिला है. गेन कितना मिला है? 25% का गेन मिला है. सो गेन किस पे होता है ये हमने अगेन एंड अगेन डिस्कस किया है. यू कैन गो एंड वॉच आउट माई प्रीवियस वीडियोज. that gain is always on the cost price and loss is also always on the cost price. So 25%, okay, of the cost price, okay, 25% of the cost price plus the cost price जो एक्चुअल उसने खरीदा था, प्लस ये जो गेन है ये क्या है? 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस. दिस इज द गेन दैट ही, द प्रॉफिट जो उसने कमाया उस हॉर्स पे, उसी का वैल्यू विल बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस जो कि है रुपीज 4000, है या नहीं? 4000 माइनस द कॉस्ट प्राइस विल गिव मी द प्रॉफिट ही गेन्ड. तो मैंने वही उसी को थोड़ा अलग अंदाज में लिखा. हाउ आई रोट इज, मैं यहां लिख देती हूं, गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, राइट? सो गेन इज इक्वल टू गेन प्लस कॉस्ट प्राइस नाउ विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस. तो मैंने इसी अंदाज में उसे लिखा. सो 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 25 by 100 into CP plus CP is equal to 4000, राइट? यहीं पे सॉल्व करते करते चलते हैं. सो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.25 वैल्यू हो जाएगा और ये 0.25 हो जाएगा. 0.25 CP प्लस CP इज इक्वल टू 4000. इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? ये यहाँ पर क्या है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 है एंड दीज टू आर लाइक टर्म्स, राइट? यहाँ भी CP है, यहाँ भी CP है. सो इन न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को मैं ऐड कर सकती हूँ. इट विल बिकम 1.25 CP. 1.25 CP इक्वल टू, ओके सॉरी मैंने यहाँ पर एक जीरो छोड़ दिया है, 4000. सो कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाय 1.25. 1.25 ना लिख के मैं यहाँ पर 100 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देती हूँ सो दैट ये, सॉरी, तो आई मल्टीप्लाई
100 in the denominator and the numerator, so that ये जो डेसिमल पॉइंट है ये चले जाए. 1.25 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी 100 के साथ, यहाँ करती हूँ 1.25 को अगर मैं डिनोमिनेटर में जो लिखा है आई मल्टीप्लाई विथ 100, व्हाट विल बिकम, इट विल बिकम 125. सो आई डायरेक्टली रिटन 125 हियर एंड ऊपर मैंने 100 मल्टीप्लाई कर दिया है. सो 25 5s are 125 and 25 4s are 100. नाउ ये और एक बार भी कैंसिल हो सकता है. 5 1s are 5 और ये हो जाएगा 5000, 5 8s are 40 and 0 0, राइट. सो सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट हॉर्स जिसमें उसे गेन हुआ है, दैट केम अप टू बी रुपीज 800, सॉरी 800. ऑलराइट, यहां से ये जो हॉर्स मैंने ऐसे लिखा है उसको मैं इरेज कर देती हूँ. हॉर्स, okay, so rupees 800 is the cost price of first horse. Now we can calculate the cost of second horse. कैसे, how can we calculate the cost of second horse? हमें पता है both the horses में मिलाकर उसे ना loss हुआ है ना gain हुआ है. That means the cost price of both the horses is equal to the selling price of both the horses. Selling price हमें बता दिया गया है. The man sold the two horses for rupees 4000 each. मतलब selling price of both the horses is rupees 8000. तो मैं कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड हॉर्स निकाल सकती हूँ आराम से. कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड हॉर्स प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट हॉर्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द हॉर्सेस विच इज रुपीज 8000. अब मुझे कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड हॉर्स कैसे निकालूं? I'll just subtract whatever I've just found out. What did I find out in the step? मुझे क्या मिला है यहाँ पर? Okay, 800 into 4 है. Sorry, this is not 800 alone. I have missed out this step. I just took this 800 and wrote. यहाँ पर 800 into 4 बचा है. So the cost price of first horse is 3200. Okay, I'm so sorry. So this will be 8000 minus cost price of first horse. इसको मैं इस साइड ले जाऊंगी तो subtract होगा. So इस साइड पे क्या है? Cost of first horse rupees 3200. तो ये साइड जाएगा तो subtract होगा. So now if I just erase these lines, they just make it messier. Okay, for some reason erase नहीं, हाँ. So क्या हो गया यहाँ पर? 8000 minus 3200 हो जाएगा. So this will become how much? 0 0, ये 8 होगा. 7 minus 3 बचा है, that will be rupees 4800. Now cost price है rupees 4800 और selling price हमें पता है each horse has been sold at 4000. So हमें loss immediately मिल गया. loss कितना हुआ उसे? loss हुआ है उसे selling price minus cost price. तो on the second horse, so it will be sorry उल्टा होगा because cost price यहाँ पर बड़ा है because he has lost. So cost price पहले रहेगा, selling price बाद में आएगा. So it will be 4800 minus 4000, which is rupees 800. Okay. Now we'll calculate the loss percent. Loss percent will be loss by cost price of second horse into 100. तो हमें तो loss पता है 800 और उसका जो cost price है वो है 4800 multiplied by 100. ये करेंगे तो निकल जाएगा आराम से. So 0 0 cancel हो गया. Now I can cancel out the 8 from here. 8 नहीं 4 नहीं 8 भी जा सकता है. 800 and then 8 6 are 48, right? उसके बाद फिर 2 भी निकल जाएगा. 2 3 are 6, 2 5 are 10 and 0. So it is loss percentage जो हुआ, loss percentage that is actually equal to 50/3%. उसको अगर मैं convert करूं in terms of this thing, mixed fraction, so 3 1s are 3, so it will become 3 6 are 18, 16, 2/3%, right? ये हो गया loss percent on the second horse. All right, तो